One, two, take. Hello दोस्तों, welcome back to our series Boundaries and Balance Sheets presented by Digitax. आज के गेस्ट काफी स्पेशल हैं. So welcome Dr. Aditya Singhal. Would you like to introduce yourself first? Okay, so Dr. Aditya Singhal. By qualification, I'm a chartered accountant, cleared in year 2003, and worked in 20 long years in different corporates, including HSBC, IBM, Exchanging, and so on. 20 long years, so now I'm in my own journey, in the entrepreneur's journey. This is new era of India, startup India. And in last year, we incorporated the company Numismatics Academy to explore the world culture, history, geography, art, and GK. Okay. How you came up with this name, Numismatics Academy? Okay, so very simple question here. So numismatics means the study of coins and coins and currencies, precisely coins and currencies, world coins and currencies. Right. Since my childhood, everybody had their own hobbies. So it's like that. I have a hobby of collecting world coins and currencies. So today I will say I am a proud owner of more than 200 countries, currencies and coins. I have a few records in my name. And I was traveling a lot on my work related. I was worked in 4 or 5 countries. I traveled fairly 20 plus countries as of now. And that's why I keep collecting. And I said that, okay, what shall I do to connect this hobby? How do I can utilize this hobby? So you love when you are while painting, right? But you said, इसका करूँ क्या? Sale करूँ, exhibits करूँ, क्या करूँ? That was the place where I got stuck. I said, what shall I do with my collection? What shall I do with this? When I met with one of my friends in Singapore, he's a professor. And that my conversation started with him that, tell me one thing, what is you have done in Singapore that you can find students from US, Australia, Europe, everywhere you will find students in coming. In India, if I talk about the country like India, which is one of the oldest country in the world, okay, have a good heritage. We have the Nalanda, which is one of the called, very called, is one of the oldest university. Why we not interact? It's एक ही simple है. आप पढ़ाते हो, हम सिखाते हैं. Nice. Okay, so you generally focus on a more and more teachings. We are more focusing on a learnings. Okay, and especially after new education policy, there also talks about learnings. So that's why we say, okay, the numismatics is something like we can cultivate, we can drive the countries, currencies, and their culture, history, geography, art, and GK from the currency itself. Because that's what I strongly believe. Any countries and every countries, they are the most pamphlet. That is the place where you can that is the best things to demonstrate the culture and history of that country. Right. And when was this started? So idea got started in year 2019. I will say 2019. That time I was in Singapore. I was exploring what needs to be done. Right. I was doing some trials. I was working with the schools. I was working this one, and then 2 years we have a dark years. COVID days. COVID days. Then I said, okay, not a good time. Let's take a pause. And year 23, April 23, last year, we this something like we formally incorporated a private limited, and I think the response is very good. The schools are very good. Kids are enjoying. We have summer camps. We have workshops in different schools. So and we are working towards that. So interesting. Do you have more players in this industry? Because this is quite a unique concept, like coins and everything. I was reading it and I was also very amazed, about the things that you've mentioned in your website. So are there more players in this? I would say not apple to apple, so not necessarily that is the thing, but yes, there are few competitors or the few players who are working on experiential learning. So I will not say that. See, what we are saying, we are coming with our USP that we are taking the world currencies and coins as a platform to explore the world culture. They are coming. Some of them are coming on a quiz. Some of them are coming on some other things. But my idea is maybe end of this year we are going for a Guinness Book of Record to set up such kind of an academy in the world first time who are using a world currency as a bridge to explore the world culture, history, geography. I'm just expecting good things to happen. Thank you. Amazing answers. So, chartered accountant से startup transition easy रहा, किस points पे challenging रहा, कुछ उसके बारे में share करना चाहेंगे आप? आपकी journey
I would say chartered accountancy to doctorate to employment to going to this one. This is something like in a mindset. So it is something like, are you mentally prepared or not prepared? Because one thing I can tell you honestly, guys, or I would like to tell all the audience, it's not a good and bad. It is something like आप क्या चाहते हो? Okay, the person who are doing a salary or employed salaries, they can make a millions of dollars. The people who are in a business, they also can make $1 million. लेकिन entrepreneur journey is not easy. Salary you need to crack that interview once. 2 घंटे में परफॉर्म करना है, संभालना है, और वो हो जाएगा. उसके बाद आपको मेंटेन करना है. Entrepreneurship is all about the journey where every single day you have to convince people. यहाँ पे आपका एक बॉस होता है जो आपका मैनेजर होता है, कुछ भी जॉब में होता है. When you are entrepreneurs, आपके एम्प्लॉयज भी आपके बॉस होते हैं. वो भी कल कह के डाल देते हैं, सर मैं जा रहा हूँ. आपके सप्लायर्स आपको बोल के चल देते हैं, सर पैसा दे दो. क्लाइंट, स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, तो आपके एक नहीं कई सारे बाप होते हैं in that other scenario where you have to answer. When you are in salary, you have to answer 1 or 2 guys max. Right. आपको अपने बॉस को खुश रखना है, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी, सब कुछ चलता रहेगा. So entrepreneur journey was definitely is more tougher, but that is something like, do you really enjoy? Would you like to go for, or you don't like to follow? So now coming to my journey, I ask you the one question before I answer this one. What is the biggest addiction of this world? जिसे बोलते हैं नशा किसका होता है? पैसे का, right? You're very honest. लोग आप बोलते हैं ड्रग्स का होता है, लोग आप बोलते हैं सिगरेट का होता है, वाइन का होता है, मसाले का होता है. बट आई पर्सनली से तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है सैलरी का होता है. ठीक है, मसला ही यहाँ पे, क्योंकि आप एक दिन की खुशी के लिए जो आपको 1 तारीख में जो क्लिक होती है, जो सैलरी गॉट क्रेडिट बाय दिस, आप उस नशे में अपनी पूरी इफेक्टिव लाइफ जिसमें आप करना चाहते हो वो पूरी ट्रेड कर देते हो. आप ट्रेड कर रहे हो, राइट? व्हेन यू आर एन एम्प्लॉय, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्रेडिंग योर टाइम एंड योर लाइफ विद द एक्सचेंज ऑफ मनी. यू कीप ट्रेडिंग एंड यू डोंट रियलाइज कि आपने जो आपके पास लाइफ के जो दिन है, जो मंथ है, आपने पूरे खत्म कर दिए. वो भी तो लिमिटेड थे. That's what it is journey all about. Startup is not going to easy journey. It is a series of failures till the time it become a overnight success. Amazing. Adding to what you said, जैसे पैसा तो चाहिए, आपने बोला एक फ्यूज चाहिए गाड़ी के लिए. What other factors do you think should be considered जब कोई ये ट्रांजिशन कर रहा हो? For example, अभी I'm just 22. मेरे डैड का बिजनेस है, बट हमारे लिए वो नहीं है. उन्होंने हमें इंटर्नशिप पे रखा अनपेड, कि बस देखो, एंड वो कहते हैं एक्सप्लोर करो, बाहर जाओ, दूसरों की कंपनीज में काम करो, एक्सपोजर लो, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लो, क्योंकि हमें है कि हमें भी बिजनेस करना है, जॉब नहीं करनी. तो जो लोगों का ये माइंडसेट होता है कि कुछ खुद का ही शुरू करना है, तो व्हाट फैक्टर्स टू कीप इन माइंड टू डू दैट ट्रांजिशन? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट योर केस, आप उस सैलरी पैकेज पे थे, वो रिस्क टेकिंग मे बी आपके लिए आसान था उस टाइम पे, क्योंकि वो फ्यूल था जो अभी आपने बात करी. What all factors do you think किसी को दिमाग में रखने चाहिए जब वो इतना बड़ा ट्रांजिशन या इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं? So I generally say talk to them, get a validation of your ideas, get a validation of your thoughts process. बिजनेस भी बनाना बहुत जरूरी है. कई बार जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि and that is honest. When I started 6 months, when I working and I was just sitting in a room, I was exploring, talking with the many people. 6 months result was completely zero. No interactions, no fundings, no clients, no workshops, no school returns. And I think something is really going bad. ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 4 साल बनाया था, उस समय मैं बना रहा था और आज मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. Then I realized what is fundamentally I'm making wrong, कि उसको आपको स्टोरी ट्वीट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वो सेल करना चाहता था जो मुझे अच्छा लग रहा था. I was very attached, close to my product, my idea, कि ये मेरा, मैं ये करना है. नहीं, अगर आप किसी को ए बोलना चाहते हो, इट्स ओके, और अगर वो सुनना ही चाहता है, तो आप उसकी लैंग्वेज जब तक नहीं बोलोगे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा. दैट अगेन इज अ कल्चरल मिसमैच. Then I understood what really that parents are looking for, what the schools is looking for, what the investors are looking for. I twist, I pivot according to their requirement, according to their hearing. कई बार अगर आप जाके बोलो कि किसी बोले यार मैं अच्छी नहीं लग रही, वो आपको सुनेगी नहीं आगे से. और आप उसको बोलो कि यार नाइस ड्रेस दिस वन, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू जस्ट कनेक्ट. कनेक्शन इंपॉर्टेंट है. अप्रिशिएट एनीबॉडी. अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, एनर्जी पॉजिटिव करो.
So that's what is a key. So when you starting with talk to many people you can talk more and more people. And the one and last things, अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो या आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आना चाहते हो, आई वुड रिकमेंड डोंट टॉक टू द पीपल हु आर इन योर सैलरी। कलीग से बात मत करो। नहीं, जो जने उस जने से बात करो जिसने इसका एक्सपीरियंस किया है। हाँ, ठीक है। आई मीन लेट्स सपोज इफ आई टेक माय एग्जांपल, व्हेन आई वाज अ सीए, मैंने जब पूरा अपनी स्क्रॉल की अपनी फोन बुक को, देन आई फाइंड आउट माय 90% पीपल आर फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड। आई एम कीप टॉकिंग टू देम एंड दे विल से, या तो वो मुझसे बहुत अटैच थे बिकॉज़ मेरी फैमिली है, या तो मुझे बोल देंगे आदित्य मत कर, थोड़े कंसर्न होंगे, या वो कुछ अच्छे फ्रेंड हाँ कर ले तुम तो गया, तुमने तो यहाँ पे ऑफिस में इतना अच्छा करते हो, तुम तो कर लोगे। दोनों ही गलत है। टॉक टू योर पर्सन एंड टॉक टू द पर्सन लाइक जो आपके जो बिजनेस चला रहा है, चाहे वो परचूने की दुकान चला रहा है, कि भाई ये बता बिजनेस करना सही है, तो वो बताएगा पागल हो गया है, सैलरी अच्छी है, सही बात है, या अगर ये करना है तो इसमें ये वो आपको एक्चुअली ना राइट इनपुट्स देगा। सो if you are changing salary to entrepreneur, first change your surroundings. You keep yourself in an uncomfortable situation where people are not surrounded by salary people, they are surrounded by entrepreneurs, founders, etc. आप कॉलेज में बैठो, सब जने कॉलेज टाइम में सब स्टूडेंट्स हैं, यार एंटरप्रेन्योरशिप कर लूं, हाँ कर ले, सैलरी कर लूं, हाँ कर ले, सब कर ले, लेकिन होता नहीं है। सो व्हेन यू आर गेटिंग इनटू सैलरी, ये ग्रुप नहीं है। टॉक टू योर पेरेंट्स कि मुझे 5 ऐसे जनों से पापा इंट्रोड्यूस कराओ या मामा इंट्रोड्यूस कराओ जो कि बिजनेस में या जो सैलरी में, मैं अपना गोल 2 साल 3 साल के लिए 10 साल के लिए रखना चाहता हूँ। एक चीज को टारगेट करो, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, एंड देन मूव। इमोशनल होके बिजनेस नहीं चलता। अमेजिंग, थैंक यू। मूविंग ऑन, हमारा टाइटल है बाउंड्रीज एंड बैलेंस शीट्स। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बाउंड्रीज, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? और डू यू बिलीव कि आपने वो बाउंड्रीज ओवरकम कर ली हैं जो कि आप अपनी लाइफ के स्टेज में हैं? बाउंड्रीज, इफ आई टॉक अबाउट द बाउंड्रीज, इज समथिंग व्हिच इज इन योर माइंड। अगर आप ये बोल दोगे ये इस रूम में हम बैठे हुए हैं, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी बाउंड्री होगी। अगर आप बिल्डिंग को बाउंड्री कर दोगे, दैट्स व्हाट हाउ यू डिफाइन योर बाउंड्रीज। दिस इज फंडामेंटली बाउंड्रीज इज नथिंग, इज योर माइंडसेट। जैसे मैं आज भी याद है, रतन टाटा के बारे में एक स्टोरी हमेशा बोली जाती है। ही वाज इन ए व्हाट आई से इन वन ऑफ दिस सेमिनार, एंटरप्रेन्योर्स के सब सेमिनार्स में जाए हुए थे, सब जने बैठे हुए थे, एवरीबॉडी इज सेइंग ओके, एंड every other person was a billionaire. So he asked, the speaker asked, okay, you tell me that all of you are earning in a million or millions of rupees or dollars. So tell me how long it will take you to buy a Jaguar. The people are keep telling me, somebody is saying that I will take 2 days, I will take 5 days, I will take 6 months, I will take 2 months to buy a Jaguar. In the last, the people asked Ratan Tata, how much time will you take to buy a Jaguar? He said, I think it's a big company and I will take 1 year time to buy a Jaguar. Because other people are thinking about the buying a Jaguar car, and the Ratan Tata is thinking about this buying a Jaguar company. Okay, so that is all in your mindset, what you think about. How you define the boundary. And if you ask me specifically, I think I redefine my boundaries every 3 months. Interesting. Okay, so it's not defined. Yes, there are boundaries I have crossed. That's why I'm sitting in this place and I'm moved my salary to entrepreneur's journey. Definitely, that was one of the big time boundaries. But आज की boundaries, yes, I have another set of boundaries now. So boundaries तो आती रहेंगी जाती रहेंगी. So there's no end of boundaries. Only thing is you define, redefine, put a milestones. इंसाइटफुल रहने वाला है ये पॉडकास्ट, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बैलेंस शीट्स, एज एन एंटरप्रेन्योर, हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन परस्यूइंग योर इंटरेस्ट, बिजनेस, पर्सनल ग्रोथ, फैमिली? कैसे जगल कर पाते हो, कैसे मैनेज कर पाते हो सब कुछ? मैं ऑनेस्टली बता दूं, बहुत सिंपल है, आपने आंसर खुद ही बोल दिया। अगर करना पड़े तो मजबूरी है। अच्छा, नेचुरली। ठीक है। उससे पूछा कि क्यों,
तो मैंने उनसे एक ही कहा कि करना ही नहीं करना, उसका आंसर तुम्हारे अंदर ही होगा, तुम सिर्फ 2-3 दिन एक्सपेरिमेंट करके देख लो। इफ यू आर गोइंग टू वर्क, एंड दिस माय पर्सनल ओपिनियन अगेन, इफ यू आर वर्किंग वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर मनी, बिलीव मी वो तुम्हारी हॉबी नहीं है। अगर तुम अपने जॉब पे आ रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, एंड यू आर वर्किंग द प्राइमरी कि मुझे पैसा मिलेगा, मुझे सैलरी है, मुझे सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, वो तुम्हारी सीखी, क्योंकि आपका मोटिवेशन इज मनी। So anything, let's suppose if I give example, the people who want to sing a song, who want to do a cycling, who want to do walking a race, marathon कर रहे हैं, वो सुबह 7 बजे जग सकते हैं, सुबह 5 बजे जग सकते हैं, इवन उन्हें पैसे मिल भी नहीं रहे। अगर उनके बॉस उन्हें फोन करके बोलते कि एक काम कर, सुबह 5 बजे की मीटिंग है, वो क्या आंसर देगा मालूम है? 5 बजे। So anything which you can do for yourself, anything which you can do without money or without much expectations. I give you the best example is mother love. ठीक है, अगर आप उस कैटेगरी में पहुंच गए हो कि आप कोई भी काम बिना थकने और बिना सोच के कर सकते हो, that is something like you can do endless. आपको करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा या एंटरप्रेन्योर्स करना पड़ेगा, तो believe me you are not on right. Okay, sir. Moving on to another segment, that is, what's your solution to people who contemplate their decisions? For example, कोई CA परस्यू कर रहा है, पास ही नहीं हो पा रहा, इंटर क्लियर हो गया, फाइनल्स पे अटक। Then the question is कि whether to continue ahead या फायदा क्या इतने एफर्ट्स मारने का जब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। जो मेरे को लगता है कि हमारी जनरेशन को ना रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए, हमें पेशेंस है नहीं, हमें बहुत जल्दी रिवॉर्ड की पड़ी है, वो एफर्ट रिवॉर्ड हम बहुत जल्दी कंपेयर कर लेते हैं। आप लोग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम ऐसी सिचुएशंस में जब वो अपने डिसीजंस को कॉन्टेम्पलेट कर? इसका मैं आंसर बोलूंगा नॉट एज ए एजुकेटर, बिकॉज थोड़ा क्यूरी हो जाएगा। आई विल टेल यू एज ए पेरेंट्स, बिकॉज आई एम ए पेरेंट्स एज वेल। या आजकल अनफॉर्चुनेटली जो जमाना है ना, वो 2 मिनट मैगी का है, ठीक है, पिज्जा का है, बर्गर का है, कि भाई जल्दी से मिल जाए, जल्दी से बन जाए, जल्दी से खा ले, खत्म हो जाए। आजकल के पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिले। बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ऑफ बेस्ट कंफर्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट ऑफ बेस्ट दिस, बेस्ट ऑफ बेस्ट दैट, ड्रेस हो, स्कूल हो, एक्सबॉक्स हो, बुक्स हो, डिजिटल हो, ट्रैवलिंग हो, सब कुछ, राइट। बट हम मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो नहीं देते हैं वो होते हैं लेसन, कि इट्स ओके टू बी फेल, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। या एग्जैक्टली, इट्स ओके, प्रोसेस करो उस फीलिंग को, नॉट टू बी ओके। हार जीत इज ए पार्ट ऑफ द गेम। डोंट जस्ट मूव टू विन, मूव, डू व्हाट यू लाइक टू डू। होना ना होना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जो शायद तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। गिव योर अटेम्प्ट, गिव योर फेयर अटेम्प्ट, आस्क योरसेल्फ इज इट योर बेस्ट। इफ आंसर इज यस और आंसर रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ दे। बट व्हेन यू थिंक दैट नो आई कैन डू इट बेटर, इट इज वाज एन इंस्टेंस एंड आई कैन डू इट बेटर, गिव सेकंड। दैट इज माय वे ऑफ थिंकिंग। एंड इट्स ओके, इवन आप कई बार बेस्ट देते हो, नहीं हो पाता। मैनी ऑफ टाइम पीपल से किस्मत में नहीं था, टफ आ गया, बीमार हो गया मेरी फैमिली। Two message, it's okay not to be okay, and don't give an excuse, because you will get only sympathy, not support from outsiders. Rightly said. Okay. If I tell you that I am from a state board, I was not having give money for my livelihood expenses, मैं बचपन से टीचिंग कर रहा हूँ, मैं sympathy मिलेगी। Will you help me to outcome of this? अगर कोई outcome कर सकता है, मुझे खुद ही करना था, right? Not even parents. So my answer to you things, if you are questioning and revising, up to you. But do you want to continue or not continue? It's only answer lying in yourself. क्या वो तुम्हारा बेस्ट है? Ask yourself. Ask yourself, is was your best? If answer is yes and you are not getting result, I think find out कि वो best efforts कहीं और तो use नहीं कर रहे,
थोड़ा फन सेगमेंट चलते हैं, ठीक है? आपकी टीजी जेंजी है, हम टेस्ट करेंगे आपको कि आपको जेंजी लिंगो कितनी पता है। ओके, ठीक है, तो अब हम आपकी थोड़ा सा फन एंगल कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज फ्लेक्स। व्हाट डज फ्लेक्स मीन? अगर मुझसे एज एंटरप्रेन्योर सोचो तो फ्लैक्स सब बातें अपने I know I'm bad, very bad. She is flexing her iPhone. Sirs, Show off. okay. Flex is Gen Z Now I word got for it. Okay, I show. got it. My daughters keep telling me. कि पापा ये तो मेरा फ्लेक्स है। Slay. I think I'm badly going to do. Slay is amazing. She is slaying today, or she is wearing ethnic and she is slaying today. Mm-hmm. So I think I'm old now. So to do something exceptionally well or amazing is slaying. Slay. FOMO. Full form of FOMO. पता है शायद आपको। तुम्हें प्रेशर में डाल। FOMO हो रहा है। FOMO हो रहा है मतलब नर्वस हो रहे हैं, मतलब एक्साइटेड नहीं। जो आज इस पॉडकास्ट में नहीं है उसको FOMO होना चाहिए, या जो ये सुनेगा नहीं उसको FOMO होना चाहिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, कि मैं उस ट्रिप पे नहीं जा पाई, बहुत FOMO हो रहा है, कुछ मिस हो गया, उसको FOMO। तो ये हमारी टर्म है। TBH व्हाट्सएप में यूज करते होंगे आपके बच्चे? TBH बर्थडे नहीं, कुछ तो ऐसे ही होता है। ये SMS की लैंग्वेज है। हाँ, ये SMS और WhatsApp की लैंग्वेज बोलते हैं। थैंक्स विद नहीं, टू बी ऑनेस्ट हमारे लैंग्वेज में अगर फाइनल में टू बी हायर होता है तो मतलब सॉरी मैं एंड ओरिजिनली से TBD टू बी डिस्कस्ड, TBH टू बी हायर, पोजीशन हायर होती है। I acknowledge all this for a man. To be honest, this podcast is too insightful. अगला segment, would you rather questions. Would you rather do this or that? So I have some questions for you. First, would you rather have the ability to instantly calculate any math problem or have the power to predict future financial trends accurately? वो first is possible is a skill. Second thing is Badam. I'll go for the second one. So first thing is something like I can develop my own. Got it. Would you rather have a treasure chest filled with rare coins from around the world or a vault full of investment opportunities for your startup? Second one, first I had. Wow. If you could time travel with one coin from your collection, would you rather go back to witness a historical event or forward to see the future impact for what is going to happen with Numismatic Academy? This is a little tricky. I would like to go past. And I tell you why it is so. ये फ्यूचर में होना वो होना है। अभी से क्यों टेंशन? फोमो पे रखना आपके लिए। बात तो सही है। If you had to choose, would you rather receive mentorship from a legendary person who is also already pursuing numismatic, or from a successful serial entrepreneur in the education industry? Serial entrepreneur. तो काफी conviction है आपको when it comes to your. No, it is very simple. Is because what I have already, I may not go for this one. If I don't have this one, so let's suppose when I'm hiring and building my team, I don't want to hire any chartered accountant. Or with the same mindset what I have, or what I already have. I want to buy, and even I give you the best example, one of my creative director, he's 17 years old. I don't want to offer him formally because he is not 18. Right. But I am more than happy, जो मेरे पास नहीं है मैं उस पे जाऊंगा, जो मेरे पास है already. If I am going, I am just adding the things 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If I don't have, I am changing the place 111, 111, 1011. So I will go for this way, not कि depth में जाने को फायदा नहीं. So very very simple, very clear thoughts. Last question for this segment. If you could pick, would you rather have an endless supply of funding for your startup or an unlimited source of knowledge to fuel innovation? Second, knowledge man. Because funding is comes with the liability. अगर funding मिल जाएगी तो ROI कहाँ से दूँगा जब तक उसको knowledge नहीं होगी. सही बात. Very simple. Innovate कैसे करूँगा? Innovate कैसे करूँगा? Because getting a fund
अगर इनोवेट कर दूंगा तो फंड अपने आप आ जाएगा. फंड लेके नॉलेज नहीं ला पाऊंगा. राइट. एंड वी आर इन स्टार्टअप, राइट. तो फंडिंग तो झक मार के आ जाएगी अगर आप प्रोडक्ट अपनी यूज केस अगर बना दिया. इंडिया के पास पैसा बहुत है. इंडिया इज ए पुअर कंट्री विद द रिचेस्ट पीपल. राइट. तो पैसा बहुत है इंडिया के पास ही, अपने पास बहुत है. सेल करना आना चाहिए. जो हवा सेल कर सकता है, जो पानी की बोतल सेल कर सकता है, जो फ्री ना नेचर में दी हुई है, और हम इसे 10 रुपए 20 रुपए में हम सेल कर रहे हैं. दिमाग तो सेल करने वाले के ऊपर है. पानी तो वही है जो पहले था. सही. तो आज आप हमारी पॉडकास्ट सीरीज के लिए जेटाक्स में आए हैं, तो कुछ तो फाइनेंस का भी हमें पूछना पड़ेगा. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट्स एक्सपेक्टेड कि आप अपने फाइनेंसेस कर लेते होंगे हैंडल अच्छे से. कुड यू इलैबोरेट ऑन योर अप्रोच कि आप वो कैसे करते हैं, और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इन सब चीजों से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, उनको आप क्या एडवाइस करते हैं? पहले मैं इसका स्पेसिफिक आंसर देते हैं. हम जब फाइनेंस का करते हैं उससे पहले भी इनफैक्ट अभिमन्यु का नाम सुना है? अभिमन्यु कौन? महाभारत. हाँ वो है. हाँ. राइट. हम लोगों की सिचुएशन अभिमन्यु जैसी है. व्हाट डज दैट मीन्स इज फाइनेंस में हमें ये सबको मालूम है कि क्या करना है. ठीक है. कब निकलना है और कैसे निकलना है ये नहीं मालूम. ऑब्जेक्टिव पर्पस डिफाइन करो, आपको बाकी सारे आंसर मिलेंगे. 99% पीपल जल्दी से मुझे इक्विटी में डाल दूं, कौन सी इक्विटी में डाल दूं? पहले ये बताओ इक्विटी में डालना ही है. क्यों? क्योंकि आज मार्केट इतनी ऊपर है इसलिए. एज ए फाइनेंस, ट्रू फाइनेंस क्या है? इफ मार्केट इज ऑन अ वेरी टॉप, इट इज अ टाइम टू एग्जिट. Okay, when it is a bottom, it is a time to invest. But people take it just otherwise. Opposite कि ऊपर है, बूम पे है तो करते हैं. So as a finance guy, the first thing is define your purpose. Define your objectives. और आपके ऑब्जेक्टिव इस तरह हो सकते हैं कि अगर मुझे अपने बेटे या बेटी की एजुकेशन के लिए करना है, तो आपको मालूम है 18 साल की अगर वो होगी या होगा, then you need a X amount. आप उसके लिए इक्विटी में डाल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी पे करते हैं. When you want to buy a car in 1 year, 2 year, you invest because आपका वो ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है. उस केस में आप अपने डेप्ट में डाल सकते हो, क्योंकि आपको डेफिनेटली उसको करना है. आपके पास एक हो जाएगा ताकि आप इन्फ्लेशन मीट करो. क्योंकि बिकॉज ऑफ स्केयर आपको 15 लाख की गाड़ी ले रहे हो, आपके पास 5 लाख है, आपको 10-15 लाख लेना, बीच में आपको सेविंग्स करनी है. तो 5 लाख डालो ताकि 5 के 6 हो जाए. दैट विल कंट्रीब्यूट एंड देन यू विल सी, बिकॉज यू कांट टेक अ रिस्क. यू हैव टू बाय अ कार एट 2 years down the line. If you want to go your marriage for your daughter and you want a gold, just go for a gold bond. Why you don't want to do physical gold? Because आप physical gold रहोगे मिसप्लेस हो जाएगा, टैक्स लगेगा. क्योंकि आप गोल्ड आज नहीं चाहिए आपको, उसे आपको हैवी, आपको बोलते हैं आर्बिट्रेट करना. So आर्बिट्रेट कर दो उसको अपनी इसके लिए. आज की प्राइस के हिसाब से सेल्स अपनी गोल्ड लॉक कर दो. Will give you 2.5% extra and you can redeem at the future price. So आपको ये मानना चाहिए. Why? अभिमन्यु मत बनो कि जय महाभारत, मतलब जय महाभारती और अंदर घुस जाओ कि हम सब कुछ कर लेंगे. ये भी सोचो कि सूर्य अस्त होने वाले, निकलना बाहर कैसे. ठीक है. क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमें ये नहीं मालूम होता हमें बाहर कब निकलना. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी थॉटफुल वी नीड टू डू व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ मार्केट और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस. पर्पस एंड टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट. मीडियम मैटर नहीं करता कि और एंड टेल यू और आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड देख लो, कोई सा भी, मतलब कोई सा भी, अगर कोई इंडस्ट्री अच्छा कर रही है तो म्यूचुअल फंड सारे अच्छा कर रहे होंगे या सारे बुरे कर रहे होंगे. तुम्हारा डिसीजन लिस्ट क्या है? आप 15% पे कर रहे होगे, वो 17% पे कर रहे होगे, तो आप कहाँ पे फोकस करो? 2% के मार्जिन पे. बट फोकस करो करना भी है नहीं करना है. ये मेरे लिए म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए इक्विटी इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है. दैट्स इज माय स्टेट. गॉट इट. अमेजिंग. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपने अभी तक ये पॉडकास्ट सुना है, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन. काफी इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा, काफी कुछ नया पता चला. और जैसे आप बताते हैं, आई बिलीव कि न्यूमिस्मैटिक्स एकेडमी एक्चुअली काफी लोगों को एम्पावर कर रही है विद व्हाट यू आर डूइंग. थैंक यू सो मच टुडे. और गाइस, वी विल कीप हिज डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. You may reach out to them if you're interested. And that's it for today's episode. Stay tuned for what's coming next on Boundaries and Balance Sheets presented by JJ Tax. Thank you. Thank you very much. Thank you so much sir. बहुत मजा आया. कि मेरा पर्पस एक ही है इसमें कि whoever is in educational world, whether small or a big, I'm more than happy to partner with all of you. Because I believe when you are a small, you really need
your partners. Okay, I'm more than happy to partner with all of you. I'm flexible, open with all of you. एक साथ काम करते हैं. मार्केट में अगर एक साथ उतरेंगे, हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट और ब्रांडिंग कॉस्ट अगर कम कर पाएंगे, हम बिजनेस बना पाएंगे. So anybody, any people who feel that can add value along with me, I'm more than happy and I welcome you. You have my details on this broadcast. You can come and irrespective. Don't feel that कि मैं एजुकेशन से नहीं हूँ या मुझे फाइनेंस नहीं आता या मुझे टीचिंग नहीं आता. आई एम हैप्पी. अगर आपको लगता है आप किसी भी चीज में ऐड कर सकते हो. आप सोशल मीडिया के बंदे हो, सोशल मीडिया कर सकते हो, ब्रांडिंग के बंदे हो, मार्केटिंग के बंदे हो, टीचिंग के बंदे हो, ऑपरेशन के बंदे हो. वी आर ओपन टू एक्सेप्ट एनीबडी. जीरो होनी चाहिए.